लेट्स फाइट बयानबाजी। असम, केरल और पुडुचेरी में पोलिंग होने के बाद सारे राजनीतिक दलों का फोकस पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु पर शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक चुनावी सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल विवाद का जिक्र करते हुए टीएमसी सरकार को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा है कि मां, माटी और मानुष के नारे देने वाली ममता बनर्जी की सरकार में मां की स्थिति सबसे खराब हो गई है। खासकर SC, ST और OBC समाज की बेटियों के लिए जीवन दुष्कर हो गया है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे SC, ST, OBC समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झूठा करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम का झूठ उनकी पराजय की बौखलाहट है, इसलिए वे कुछ भी आरोप लगा रही हैं। 10 से 200 गाड़ियां आ रही जिसमें केंद्रीय फोर्स आ रहे हैं और जनता को मारने के लिए। झूठ बोलने की अति होती है, हद होती है। ये पराजय की बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रहे हैं और ऐसे आरोप उनको खुद हास्यास्पद बना देंगे। केरल में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि केरल की जनता पिछले 10 सालों से पिनराई विजयन के मुख्यमंत्री पद से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि LDF सरकार चोरों को बचाने और मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। What are the hopes now you are seeing since 7 a.m. the polling has started when we are talking? It's almost 1.5 past. What are the information you are gathering from across the state? Brother, I told you several times. We are going to sweep the election. We will cross 100 more seats in these elections. The atmosphere in the state is like that. People are very much for a change. They are fed up with this Pinarayi Vijayan as the Chief Minister for the last 10 years. The question before the people in this election is whether this anti-people, arrogant Chief Minister has to continue 5 more years. They are telling not at all. This is the answer we are hearing from everywhere. You can see Lord Ayyappa's gold has been taken away. The theft happened. This government is trying to cover up the culprits of that gold theft case. They are trying to cover up the case itself. In this people court, the court will have a verdict very clearly. The people court have a verdict. We don't want the government who supported the gold theft culprits. So anti-incumbent. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल की राजनीति को लेकर दावा किया है कि बीजेपी यहां कोई मायने नहीं रखती क्योंकि विधानसभा में उसके पास एक भी सीट नहीं है। थरूर ने कहा है कि यह लड़ाई पूरी तरह मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी LDF और UDF के बीच है। 2% to 20% they are claiming. Look,
the best they've ever done is about 16. So let's see if they can actually improve on that. And frankly, you can get 16 everywhere in Kerala and lose all seats. So I mean, the point is, are there constituencies where they can get 35, 36, 40 and have a chance of winning a seat? I see barely a couple of constituencies where they would even have that kind of number. So let's see as people vote. Both the constituencies that people are talking about where they seem to be in play are constituencies where others are also in play. There is no constituency where everyone is saying BJP is completely ahead. All they're saying is it's a tough fight. Well, we are in the game for a tough fight. Let's see if we can win. How do you see UDF versus LDF or versus BJP? How do you see it? Because BJP is totally claimed that they are sure. BJP is not a factor. You have to understand. This is a state where BJP is a zero-seat party in the assembly. To even mention them in the असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले चरण के मतदान में मत प्रतिशत पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मूल के मुसलमान समाज का पारंपरिक वोट प्रतिशत 95 से 96% रहता था, जबकि असमिया समाज का 75-76%, लेकिन इस बार दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हमारे जो बांग्लादेशी ओरिजिन जो मुसलमान समाज है, वहाँ में करीबन 95 से 96 वोट हुआ करते थे, ट्रेडिशनली होते थे। लेकिन बाकी जो असमी सोसाइटी है या बाकी लोग हैं, ये सब जगह में ओरिजिनली 75-76% का वोट होते थे। लेकिन इस बार दोनों समाज का वोट एक कंपटीशन जैसा हुआ एंड मेरा लगता है कि लगभग पोलिंग परसेंटेज 86-87% तक चला जाएगा जब तक फाइनल आउटकम होगा। सो ट्रेडिशनली जो ज़्यादा वोट करते हैं वो लोग तो किया ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा वोट नहीं करते हैं, इस बार वो समाज भी उत्साह और उमंग का साथ वोट किया है। दादा, अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह का है तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रिपल डिजिट में पहुंचेंगे आप? जो देखिए, चुनाव का परिणाम बहुत आगे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं, उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90+ में। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि महाअभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ही खारिज करवाया है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है। एक तो आपके खिलाफ हमने एक इम्पीचमेंट मोशन लाया था महाशय, भारतीय जनता पार्टी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं उपराष्ट्रपति को नहीं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, निवडणूक आयोग और इलेक्शन कमीशन। तो जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि निवडणूक चुनाव आयोग के का जो हेडक्वार्टर है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराइए, अब यही बाकी है, यही देखना बाकी है लोकतंत्र को। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार की शिक्षा नीति को विफल बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्र शुरू होने से पहले ही कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। भाजपा की सोच में गरीब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। तो काम ही नहीं है ना, इनका सोच ही नहीं है ना, पैसे दें गरीब का बच्चा कैसे पढ़ ले। ये तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाना चाहते हैं, जो आरएसएस का एनजीओ चलाता है उसमें पढ़ाना चाहते हैं और पैसे भी लेना चाहते हैं। आरएसएस की जो पाठशाला वहां लगाना चाहते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों के अंदर है इनके नामांकन बढ़े, गरीब का बच्चा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम पढ़ ले, ये सोच ही नहीं। आप बताओ, मंत्री ये कह रहा है जब सत्र शुरू होने वाला है तो क्या कितनी स्कूलें बंद करनी है, आओ मीटिंग कर ले। वो तो हमने मुख्यमंत्री तक समाचार भेजा कि ये स्कूलें बंद करेगा तो हम आंदोलन करेंगे, तो वो एक बार मीटिंग स्थगित हो गई। बाकी उनकी सोच तो यही है कि जितनी भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो बंद कर दो, टीचर एक लगाना नहीं है। भवनों की जर्जर तो बता दी लेकिन नए भवन नहीं दिए। अब गांव वालों ने अपने खर्चे से मरम्मत कर दी। हमने 1 करोड़
रुपए दिए मैंने मेरे कोटे से, वो मरम्मत होगी। अब उन स्कूलों को वापस सुरक्षित भवन बता करके चालू नहीं कर पा रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सारी की सारी स्थितियां हैं, लेकिन कहें किसको? शिक्षा मंत्री को कह दो क्या? आप कह दो वो तो गाली निकालने लग जाता है कांग्रेस को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, गहलोत जी को, मेरे को। तो ये क्या राजनीति? इसमें भी राजनीति मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि ऐसे लोग सत्ता के अंदर बैठ गए जिनका विजन ही नहीं है, जिनका सोच ही नहीं है। 24 घंटे केवल राजनीति, वोट बैंक की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान में भारत को जाति प्रधान देश बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब टिकट बांटने में मंत्री बनाना हो या कोई भी कार्य हो, सबसे पहले जाति को ही देखा जाता है। में जाति प्रमाण पत्र मिलता है, टिकट बढ़ता है तो जाति देख करके, मंत्री बनते हैं तो जाति देख करके, हर काम तो जाति। अब जो नौकरी में फार्म मिलता है उसमें भी कॉलम लिखा रहता है कि जाति, उपजाति भरिए। सब अरे भाई, हम लोग तो जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब एक आदमी लड़ रहा है, 1000 आदमी दौड़ा रहा है कि नहीं जातीय नहीं तो क्या करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर बिहार का पूरा सिस्टम चौपट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसान परेशान है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और अधिकारी शराब के नशे में डूबे हुए हैं। हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भड़कम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने लेबनान में चल रही इजरायली हमलों के बीच युद्ध विराम पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि उनका देश चाहता है कि अमेरिका ईरान सीज फायर के तहत लेबनान को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इजराइल दुनिया को आग लगाता रहे और हम बेबस तमाशबीन बने रहें। That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान लेबनान को लेकर शांति वार्ता तोड़ना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है, लेकिन लेबनान कभी अमेरिकी शांति प्रस्ताव का हिस्सा ही नहीं था। जेडी वेंस ने कहा है कि यह समझौता मुख्य रूप से ईरान और उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी पर केंद्रित था, जिसमें इजरायल और खाड़ी के सहयोगी देश शामिल हैं। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.